Good morning, students. Today I am going to take your first chapter, A Letter to God by J.L. Fiennes. Let's see what type of a letter is written to God in this chapter and who writes a letter and why does he write a letter. Now, before reading the story, let's read out They say faith can move mountains. यहाँ पे इसका वॉट सिंबॉलिक मीनिंग इज गिवन कि अगर हमारे ऊपर बेटा विश्वास हो कि हाँ हम इसमें इस पहाड़ को भी हिला सकता हूँ, तो कहते हैं बेटा विश्वास में बहुत ताकत होती है. एंड फेथ कैन इवन मूव माउंटेन्स इफ़ यू हैव अ ट्रस्ट इन योर विल and self will, self power, self work, you can do the wonders in the life. And but what should we put our faith in? This is the question in the story delicately poses. Okay, but what should we put our faith in? Now here, let's see. Now here, what does he say? That Lango is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. जब वो नष्ट हो जाती हैं तो then and for a 100 पैसास asking for 100 पैसास कि भगवान मुझे 100 पैसे दे दो. And does Lanko's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. Now it's very you can see this in very ironical that now you are sitting with me online. Otherwise in the classes we would have discussed that it's very interesting when we take a chapter in the class and then we go for the discussions. I know that it's our faith only when we write a letter to God. First thing is that we do not know what is the address of a God and how that letter can reach to a God. But do you think that God is there? What I believe, what I think, human being is a symbolic of a God. हम इंसान जो है ना बेटा भगवान के जो बंदे हैं, हम में से ही जिसके भगवान ने हमें अपना रूप लेकर हम में से कई लोग होते हैं बेटा वो इतना अच्छा नेक काम कर जाते हैं, शायद वो भगवान ने अपने ही बंदे छोड़े हुए हैं कि फ्रॉम द हेवन. तो व्हाट दिस इज़ व्हाट एज अ टीचर आई बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल possess the qualities of a God. But now let's see इसमें होता क्या है. A letter to God. Now let's find out that what does the writer J.L. Fiennes wants to convey. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest. You can see in the book itself by the side of it is written here that what is a crest. It is already given over here. Okay, what is the crest? It is given here. Crest is a top of a hill. From this height, one could see the river. Underline these one that you can have now MCQs from the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat means it was located on the top of a hill, top of a low hill, and from this height one could see. इतनी height पे था कि जहाँ से हमें rivers, field of ripe means पके हुए corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. These all lines are the indication of the good harvest कि हमें इसकी बहुत अच्छी फसल होगी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. क्योंकि बेटा किसी भी फसल के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर बारिश चाहिए होती है. तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें शावर चाहिए होता है. एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग Lenko, again the pause is there, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. What does he want to convey? The only thing the earth needed was a downpour or at least एक हल्का सा बुछार आ जाए, बारिश आ जाए तो चलो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी. एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards. इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि दैट who knew कि जो उसके फील्ड्स हैं इंटीमेटली, जो अपने एक अच्छे से फील्ड्स को इंटीमेटली मीन्स गहराई से जानता था, had done nothing else. मॉर्निंग से वो क्या कर रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, what does he doing it? He is only looking towards the sky in a hope that he would get a rain, and when the rain will come, of course the harvesting will be more. And now we are really going to get some water woman. Now we are really going to get some water woman means this line is being spoken to whom? By Lenko. कि now we are really going to get, सच में आज हमें बारिश मिल जाएगी, and today we are going to get some water. And the woman who was preparing supper. What do you mean by a supper? जिसको हम evening meal बोलते हैं बेटा. ना तो ये dinner होता है ना ये lunch होता है, it is supper. जो dinner और शाम के lunch के बीच में खाया जाता है, that is called as a supper. Replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them. We can just assume, we can just say that woman, who was she?
Can we assess it that who was that woman? She might be the wife of that the farmer. The woman who was preparing, this question can be there, what was she preparing when he was talking to that woman? She was preparing supper. Replied, yes, God willing. The older boys, what they were doing? They were playing in the field. Sorry, they were working in the field, and the smaller ones, they were playing near the house until the woman called them all. जब तक उसने उसको नहीं बुलाया. Then come for dinner. It was during the meal that, just as Lenko had predicted, the big drops of rain. Now the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The old boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. Now कहते जब तक उसने खाना खुना सब बनाया, बना तो वो शाम को रही थी, it was a supper only, but उन्होंने खाया कब? डिनर के टाइम पे. तो that's why come for dinner. It was during the meal then that, just as लैंको हैड प्रिडिक्टेड. लैंको ने क्या प्रिडिक्शन किया था बेटा? उसकी क्या प्रिडिक्शन थी कि आज हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, मीन शॉवर होगा. बाय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन. कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत सारे वहाँ पे अप्रोचिंग मीन्स आ रहे हैं, वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, देर अराइविंग. एंड द एयर वॉज फ्रेश and sweet, and the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो वो आदमी था वो बाहर किस कारण से गया था? सिर्फ एक रेन को एंजॉय करने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, what did he say? That these aren't the raindrops falling from the sky. These are what? What does he want to convey? ये आपको पता होना चाहिए. दे आर द न्यू कॉइन्स. मीन्स ये हमें अच्छी फसल देंगे और अच्छी फसल होने से हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी. एंड बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. मीन्स क्या हुआ इसके अंदर? बिग ड्रॉप्स आर 10 cent. मीन्स मोटे मोटे वहाँ पे उसके 10 cent पीसेस में गिर रहे थे, और जो छोटे छोटे थे ड्रॉप्स जो हो रहे थे, दैट दे आर 5s. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दैट दीज आर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग. जो बड़े बड़े थे वो उन्हें 10 cent के पीसेस दिख रहे थे, और जो छोटे छोटे थे उनको लग रहा था कि उनकी इतनी कमाई हो जाएगी. बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर द छोटे छोटे 5 के जैसे कॉइन्स होते हैं उसकी तरह थे. और जो बिग वाले ड्रॉप्स थे वो 10 मीन्स मोटे मोटे, बारिश भी हो रही थी और पतली वाली बारिश भी हो रही थी. और वो एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि विद द अराइवल ऑफ दिस यू कैन से रेन, दैट डेफिनेटली दैट ही वुड बी गेटिंग अ गुड हार्वेस्टिंग, गुड क्रॉप्स विल बी देयर एंड गुड हार्वेस्टिंग विल बी देयर, एंड ही वुड बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. And now then what happened? With this satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers. Then what happened? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in a curtain of rain. But suddenly क्या हुआ? एकदम से ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे यहाँ पे राइप कॉर्न मिल जाएगा, दैट ही वुड बी गेटिंग अ विद इट्स फ्लावर्स के साथ अच्छी खेती बाड़ी हो जाएगी. ड्रेप्ड इन अ मीन्स कवर्ड. ड्रेप का मतलब होता है बेटा एज द बाय द साइड इज given covered in a curtain of rain. But suddenly, oh my god, क्या हुआ एकदम से? A strong wind began to blow, and along with the rain, with large hailstones began to fall. What do we mean by the hailstones? Can anybody tell? Yes, of course, ये जो हमारे hailstones होते हैं हम किसको बोलते हैं? एक तो ये हेल स्टॉर्म होती है बेटा. दीज आर द हेल स्टोन्स आर द स्मॉल बिट्स ऑफ जो आइस होती है जो कि ऊपर से फॉल लाइक रेन, जिसे ओले बोलते हैं. एंड अ स्टॉर्म इन विच हेल स्टोन्स फॉल इन अ इज अ, और जिसमें कि हेल स्टोन, जिस तूफान में हेल स्टोन्स गिरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म. ठीक है, तो तभी वहाँ पे क्या? हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. एंड द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट, और कहते सारे देख के बड़े खुश हो गए. ओ माई गॉड, अब इस बार तो हमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छा पानी मिल जाएगा. एंड दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. जैसे हमारे घर के बाहर कभी देखा हमने ओले पड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर कभी आपने देखा होगा लॉन में वो वाइट से हमें वाइट मोती जैसे नजर आते हैं, तो बच्चों को वही नजर आए. एंड दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन मीन्स आइस बॉल्स, आइस पर्ल्स. क्लियर? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ. तभी एकदम से क्या हुआ? उसको लगा ये वाला जो वेदर है इट इज़ गेटिंग नाउ बैड नाउ, आई होप इट पासिस क्विकली. अब धीरे धीरे तो उसको मौसम अच्छा लगा, हल्की सी बारिश हुई, फिर बड़े बड़े जैसे उसने बोला था 10% पीसेस में एंड 5% पीसेस में जो उसने बोला था
देन ही फाउंड लिटिल वंस आर फाइव्स। बोला था ना पहले उसने 10 सेंट पीसेस के अंदर, अब उसको लगा कि पहले तो उसने पर्ल्स भी इकट्ठे किए, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन नॉर्मल। तभी एकदम से क्या हुआ, उसने क्या बोला, वॉट डिड ही से, ओ माई गॉड, इट्स एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस, मैं चाहता हूँ, भगवान से आशा करता हूँ ये चुपचाप इतना सा यहाँ से निकल जाए, तूफान है। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एंड ऑल द हेल रेन्ड ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिल साइड, ऑन द होल द फील्ड वॉज वाइट। ऐसे लगा कि तभी सून वहाँ पे इतने तेज वहाँ पे ओले पड़े कि उसके सारे के सारी चीज़ें किससे भर गई, ऐसे लगा जैसे किसी ने चारों तरफ नमक भी खेल दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज, और एकदम से क्या हुआ, ओहो, द नॉट इवन अ लीफ रिमेन्ड, not even a leaf remained on the trees, and the corn was totally destroyed. And the flowers were gone from the plants. And now the Lanko's soul was filled with sadness. And when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, ये आपको बेटा बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए what he wants to say, a plague of locust wood. What is a locust means? Of insects which fly in big swarms, group and destroy. तो अब उसने अपने बेटों से क्या बोला, उसने क्या बोला, now what will happen, have left more than this. It means what he says means the flowers were gone from the plants and the Lanko's soul was filled with sadness. Why his soul was filled with sadness? Because he was expecting a good and heavy rain, बट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द हेल स्टॉर्म, नहीं चाहिए था उसको, हेल स्टोन्स तो ठीक थे बट देर वॉज द हेल स्टॉर्म ऑल्सो। एंड वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर शायद अगर इंसेक्ट्स ने मेरी फील्ड्स के ऊपर या मेरी क्रॉप्स के ऊपर अटैक किया होता तो शायद वो ज़्यादा बचा जाती, मतलब हेल स्टॉर्म ने ज़्यादा नुकसान कर दिया rather than the locust. Are you getting my point? Comparison is being done. A plague of locust would have left more than this, but the hail has left nothing. I think that these expressions are clear to all of you. अब देखो वहाँ कंपैरिजन कर रहा है, कह रहा है अगर मेरी क्रॉप्स के ऊपर अगर मान लो किसी फ्लाई ने एक प्लेग कोई बीमारी हो जाती है, इंसेक्ट्स कोई इंसेक्ट होता है जिसे विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स के ऊपर, ग्रुप्स में जो अटैक करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, कहते हैं शायद अगर उन्होंने मेरी क्रॉप्स के ऊपर अटैक किया होता तो उसके अटैक करने के बाद भी शायद मेरे पास बाजार में बेचने के लिए कुछ क्रॉप्स रह जाती, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मेरा तो सारा कुछ खत्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचेगा, दैट हमारे पास कोई भी क्रॉप ऑफ कॉर्न नहीं बचेगी, हमारी जितनी भी मक्की दाना जो भी है ये सब खत्म हो गया। द नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा, इसके बाद हमारे पास अब कुछ नहीं है। तो दीज आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कि दैट व्हाट डिड लैंको होप फॉर अ गुड रेन, व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स were like the new coins, because he was in a hope to get the good amount of money. How did the rain change into a storm? What happened to the Lanko's fields? Third question is given. Soon there were the hailstorm, and what was Lanko's feelings when the hailstorm? They're not this year. They had to sleep hungry. So all these are the answers of these questions. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. अब उनके बेटा देखो, बट इन द हार्ट्स मतलब अब उन सबके जो भी लैंको के परिवार में था, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस में कौन था, दैट लैंको इन द मिडल ऑफ द फैमिली, उनके पास सिर्फ एक ही उसके ऊपर विश्वास था, भगवान के ऊपर। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ, उनका एक विश्वास था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मारता, हमें कभी भी ज़िंदगी में उदास नहीं होना चाहिए। बट कहते हैं कि ऑल थ्रू द नाइट लैंको, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर ही हैड अ फुल ट्रस्ट ऑन गॉड। उसने जब ये तो बोला कि दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत करी हमें कुछ नहीं मिला, देर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा, एंड वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बट इन द हार्ट्स of all who lived in that, लेकिन उनके दिलों में क्या था जो अकेले उसमें रहते थे, कि दैट देयर वॉज अ सिंगल होप, हमें कभी अपसेट नहीं होना चाहिए, और भगवान होता है वो कभी किसी को भूखा नहीं मारता है, ठीक है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night,
All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, जैसे कि उसको नॉलेज थी, पता था कि भगवान की आंखें सब देख रही होती हैं, एवरीवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्सियस बोलते हैं इसको बेटा, जो हमारी अंतरात्मा में होता है ना, भगवान सब देख रहा होता है. एंड लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. ही वॉज एन ऑक्स, कहते उसने एक बैल की तरह, कोल्लू के बैल की तरह काम किया था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. एंड द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, उस आपको ये पता बेटा आपको होना चाहिए, लेंको वॉज एंड ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन हार्ड वर्किंग पर्सन के साथ साथ इसको ही हैड लर्न हाउ टू राइट ऑल्सो. ठीक है ना. स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट मीन्स ही वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. कई बार हम लोग क्या एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि नहीं मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं, बट ही वॉज लिटरेट, ही वॉज नॉट इलिटरेट. कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, डिड ही नो हाउ टू राइट? यस, he knew how to write it. And the following Sunday he began, वो पूछेंगे कैसे, because he began to write a letter which he himself would carry to down and place in the mail, and it was nothing less than a letter to God. वो भगवान को चिट्ठी लिखता है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 पैसाज in order to. अब कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि उसको कितने पैसे मांगे थे उसने भगवान से, 100 पैसाज. आई नीड 100 पैसाज. ठीक है ना. इट इज़ अ गिवन अ करेंसी. Some meaning is given there. What is the pesos here means? What is given here? A currency of several Latin American countries. एक करेंसी होती है पैसोस में, यानी कि हमारे एक पैसा दो पैसा नहीं, करेंसी की फॉर्म में बात चल रही है यहाँ पे. तो यू शुड नो 100 pesos. In order to sow my field, मैं दोबारा से उन पैसों से दोबारा से बीज बोऊंगा. Until the crops comes, because the, अब वो कहना चाहता है कि इसने चिट्ठी में ये सब लिखा कि भगवान जी मुझे 100 pesos दे दो, और ताकि मैं दोबारा से सीड्स लेकर आऊँ, मैं दोबारा से खेती बाड़ी करूँ, और फिर क्योंकि मेरा सारा हेल स्टॉर्म ने सारा मुझे ख़त्म कर दिया. ही रोट टू गॉड, किसके ऊपर लिखा उसने? ऑन द एनवलप. आपको पता होना चाहिए उसने किस में लिखा? एनवलप में. और उसने क्या करा? पुट द लेटर इनसाइड इट एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसने इसमें कहाँ डाल दिया? मेल बॉक्स में. आजकल तो हमारे पास मेल्स होती है, हम मेल डाल देते हैं. पहले ज़माने में क्या होता था बेटा? पोस्ट ऑफिस होते थे, हमने कोई लेटर डालना होता था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू गो टू द पोस्ट ऑफिस. वहाँ पे लेटर बॉक्स होता था, हम बॉक्स में डाल के आते थे, फिर वो आगे वहाँ लेटर पहुँचती थी. तो दैट्स वाई. तो अब उसके बाद क्या हुआ? वन ऑफ द एम्प्लॉइज ओवर द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली. अब देखो लोग बेटा मजाक उड़ाते हैं, तभी कहते हैं हमें किसी के फेथ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. लेकिन शायद उसको लगा कि इसने भगवान को चिट्ठी कैसे पहुंचाएगा. ही शोड हिम अ लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर, उसने कभी भी अपनी करियर में, इट इज़ ए कॉल्ड नॉट अ कैरियर, इट इज़ अ करियर, एज अ पोस्ट मैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. कहता मेरे को तो पता नहीं कैसे ऊपर पहुंचेगी. एंड द पोस्ट मास्टर, now see the description, the postmaster a fat and amiable. Amiable means बहुत एक फ्रेंडली किस्म का इंसान था. amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, मज़ा आ गया. क्या इसका ट्रस्ट है भगवान के ऊपर कि भगवान को उसने चिट्ठी लिखी है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मैं इसके विश्वास को पूरा हेल्प कर सकता है, इसका विश्वास मैं उसको पूरा करने में हेल्प करता. एंड हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड. सी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज गिवन, सरप्राइज, कि भगवान को चिट्ठी लिखी है. क्या इस भगवान का ट्रस्ट है कि कैसे हम इसकी चिट्ठी को उस एड्रेस तक पहुंचाएंगे. इसके विश्वास की हमें दाद देनी चाहिए. सो इन ऑर्डर, बेटा इसके थ्रू आपको एक लेसन टीच किया जा रहा है, वैल्यू टीच की जा रही है कि अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखते हो कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे 10th के बाद 11th में ये फील्ड लेनी है, फिर मुझे वो उसमें जाकर 12th के बाद मुझे ये कोर्सेज करने हैं, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट इट. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही केम अप विद एन आइडिया and answer the letter. But when he opened it, it was evident. What do you mean by evident? Means clear. उसमें clear था. What was that clear? That to answer if it needed something more than goodwill, ink and a paper. But he stuck to his resolution. He asked for money. He stuck to his resolution. Resolution का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना बेटा, उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया. He asked for money from his employees. क्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? When he opened it, it was evident that to answer it he needed. अब जो उसने उसके अपनी गुडविल को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए था? एक पेपर और पेन चाहिए था. लेकिन नहीं, वो कुछ अच्छा करना चाहता था. उसने क्या करा? उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांगे, कुछ उसने अपनी सैलरी में से निकाला, कुछ अपने, आपको पता होना चाहिए बेटा
He asked money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give. उनको चैरिटी के नाम पर, किसी की मदद के नाम पर उसके फ्रेंड्स ने उसको हेल्प करी. एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर. उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक अमेरिकन करेंसी में होता है, तो उसके लिए इतने 100 पेसोस को लेना बड़ा मुश्किल था. लेकिन सो ही एबल टू सेंड, उसने मोर देन, उसने हाफ से ज़्यादा भेज दिया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंको विद इट अ लेटर एंड कंटेनिंग ओनली अ वर्ड सिग्नेचर ऑफ अ गॉड. ओ माय गॉड. अब उसने क्या करा, कहता ना बेटा, हमने बोला कि भगवान हम ही हैं बेटा. दुनिया जो भगवान ने हमें इंसानों को भेजा है ना, इंसान ही भगवान का रूप होते हैं, कोई अलग से ऊपर भगवान नहीं आता. उसने हमारे अंदर ही कुछ लोगों को ऐसा बना के भेजा है, इस प्रवृत्ति का बना के भेजा होता है कि हम किसी भी हालत में उनकी हेल्प करने को तैयार होते हैं. अब देखा जाए तो लैंको को तो भगवान मिल गया ना, डायरेक्ट भगवान तो नहीं आया, लेकिन भगवान का वहाँ से बंदा आ गया और उसने उसको क्या बोला, मोर देन हाफ ऑफ द मनी ही डिसाइडेड टू सेंड. अब देखो कितने क्वेश्चन ईजी हैं ये वाले. व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन हियर कि दैट हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन, that he would get a money from the god. What did he do? He wrote a letter. Who read the letter? That the postmaster. What did the postmaster do? Then he collected the money. Very simple question answers. Very simple question answers. कोई इसमें मुश्किल ही नहीं है. अगर हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो all these questions are very very clear to us. Then the following Sunday, Lenko came a bit earlier. क्योंकि एकदम से आया, उसको बड़ा था कि भगवान मेरी हेल्प करेगा, तो एकदम से सुबह सुबह वो वहाँ पे पहुँच गया. और पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड. अब जो पोस्ट मास्टर था वो तो अंदर से बड़ा खुश था. कभी बेटा आप लाइफ में कभी किसी भी नीडी की अगर आप हेल्प करोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी सेटिस्फैक्शन आती है. तो उसी दिन जब पोस्ट मास्टर था ना, उसके अंदर एक अजीब सी, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट. उसके अंदर एक अच्छी सी एक रजामंदी थी, खुशी थी, सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है. तभी बच्चे हम लोग कहते हैं कि कभी भी आप किसी नीडी पर्सन को देखो तो यू मस्ट मूव अहेड एंड हेल्प दैट नीडी पर्सन. और जब कभी बेटा हम किसी भी नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, एक हमें अंदर से अलग सी खुशी मिलती है. एंड लुकड आउट फ्रॉम हिज, वो अपने ऑफिस से देख रहा है, जब वो देख रहा है ना कि वहाँ पे वो लैंको लेटर लेने के लिए आया है, तो वो अंदर से पोस्ट मास्टर देख रहा है, उससे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने किसी की हेल्प करी है. लैंको शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. उसने कोई सरप्राइज ही नहीं करा मनी के ऊपर. क्यों? क्योंकि उसका एक ट्रस्ट था कि भगवान है, भगवान ने मुझे लेटर भेजा होगा, पैसे भेजे होंगे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. कितना उसे भगवान में विश्वास था. तभी कहते हैं बेटा, कभी भी आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, ऑलवेज शो योर फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड एंड डेफिनेटली गॉड थ्रू समबडी विल कम टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू. अब देखो इसको कितना विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. जब उसने पैसे गिने, पैसे तो कम निकले. पैसे कम क्यों निकले? क्योंकि उसको पूरे पैसे वो ले नहीं पाया था, कलेक्ट कर नहीं पाया था. क्योंकि एकदम से 100 पेसोस को लेना तो बड़ा मुश्किल था. तो जितना उससे हो पाया उतना उसने कर दिया. इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक एंड ऑन द पब्लिक राइट टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो. रिंकलिंग मीन्स गुस्से के मारे, उससे बड़ा गुस्सा आ रहा है. रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, माथे के ऊपर बिल्कुल राइटिंग रिंकलिंग ब्रो. एंड कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अगेन उसने क्या करा, ही एफिक्स्ड. फिर उसने क्या करा, उसमें स्टैम्प वगैरह लगाई, दोबारा से लेटर लिखा एंड ऑन द एनवेलप विद द ब्लो ऑन हिज फेस्ट. द मोमेंट दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर व्हाट डिड ही डू इट. फिर जैसे ही उसने वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर कहाँ गया, ही वेंट टू ओपन इट. उसने क्या लिखा था, गॉड of the money that I asked for, only 17 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. At last he summed up with this कि वो क्या है, वो दगाबाज हैं. मुझे पूरा विश्वास था कि आपने 100 पीसोज ही भेजे होंगे, बट इसमें से 30 पीसोज कौन खा गया? ये जो पोस्ट मास्टर है ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, दे ऑल आर वेरी वेरी क्रुक पीपल. ये बहुत धोखाधड़ी देने वाले हैं. यहाँ पे बहुत एक बंच मीन्स गुच्छा है यहाँ पे, जो लोग बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी दैट अबाउट लैंकोस, दैट हु हैड अ ट्रस्ट इन द गॉड एंड हु शोड हिज ग्रेट फेथ इन द गॉड एंड गॉड ऑल्सो फुलफिल्ड हिज फेथ. फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर द 100 पीसोस, बट एटलीस्ट ही गॉट 70. एंड विदाउट, देखो उसको कोई शक नहीं होता कि मेरी किसी ने हेल्प की. ही थॉट कि मुझे भगवान ने ही भेजे हैं. एंड एट लास्ट दिस इज व्हाट वी कैन assume that he might have got 30 more, and he got that help from indirectly through the human beings. He got the help from the god. This is what a letter.
This is what the title is given here. What is the title given here? A letter to God with a trust. तो what does the writer he wants to convey through this chapter बेटा, कि जब कभी भी आपका कभी भी ट्रस्ट डगमगाता है, कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चैलेंजेस आते हैं, तो आपको डगमगाना नहीं है. हैव अ ट्रस्ट इन सेल्फ एंड शो योर फेथ इन योर वर्क एंड द गॉड, एंड गॉड इज देयर टू हेल्प यू, ऑलवेज देयर. कोई भी आप गलत काम करते हैं तो आपकी जो कॉन्सियंस होती है, अंतरात्मा आपको जिकोरती है कि आपने गलत काम नहीं करना. अगर आप ईमानदारी के साथ, अगर आप किसी विश्वास के साथ कोई काम करते हो, डेफिनेटली गॉड इज़ ऑलवेज विद यू. ही इज़ सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल. वो सब भगवान होते हैं. ये नहीं पता बेटा किस टाइम पे आपका काम हो जाए. तो एट लास्ट दैट ही शोड हिज फेथ इन द गॉड, एंड you can say his faith was being fulfilled by God. Similarly, whenever you come across any problem in the life, do believe, trust the God. Now serious question is given here. Was Lenko surprised to find a letter? No. Why no? हम कैसे कह सकते हैं कि वॉज लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद, बिकॉज ही हैड अ ट्रस्ट इन द गॉड. ही थॉट इट कि मैं भगवान मेरी हेल्प करेगा, और भगवान कभी किसी को भूखा मारता नहीं है, और हम लोग हंगरी नहीं मरेंगे. तो दैट्स वाई ही हैड नो, यू कैन से देयर वाज अ नो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम. एंड व्हाट मेड हिम एंग्री? Oh my God, when he got 30 paisas less, he thought that the bunch of crooks, they might have stolen the money from the post office. उसको इस चीज़ का गुस्सा आया. तो नेक्स्ट टाइम उसने भगवान जी से क्या बोला कि भगवान जी, आप इसके मेल के थ्रू मेरे को पैसे नहीं भेजेंगे, आप मुझे किसी और जरिए से पैसे भेजेंगे, बिकॉज here in the post office there are the bunch. See how innocent that farmer was, what kind of a trust and faith he had in the God, and of course his faith was being fulfilled. बेटा मैंने बोला है कि कोई फरिश्ता नहीं आता, अलग से नहीं आता, भगवान नहीं आता. ये जो हमारे आसपास गिर्द लोग होते हैं, हम यही भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं. और हमें हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए अपने काम के ऊपर, और हमेशा हमें अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए, हमें अपने ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि आई कैन डू दिस टास्क, एंड डेफिनेटली you are going to win. Whatever the sort of challenges you face in the life, all will get sorted out. So this is what through this chapter, a letter from God, that Joel Fentz wants to convey, that have faith in yourself. आपका जो फेथ है, विश्वास है, वो ज़िंदगी में कुछ भी चमत्कार कर सकता है. आप वंडर से वंडर भी कर सकते हैं. I hope so. All of you must have enjoyed this chapter, a letter to God. If we would have been in the class, we would have enjoyed a lot more. But on this online class, I think that it is more than sufficient. In case you want anything else, you just write in the comment box, and do like and share and subscribe my channel, so that I can reach to the maximum student, those who are living in the remote areas. Thank you, beta. Bye-bye. Have a nice day. Always stay blessed and healthy.